اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دور ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور کلمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کیا اور ہمارے لیے ممکن کیا کہ آج ہم اکٹھے مل کر تیری عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہو سکیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں صحت و تندرستی کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں خداوند جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ جہاں بھی تیرے لوگ یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند، تیری موجودگی سے ہم یہاں پر برکت پانے کے لیے جمع ہیں۔ خداوند، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو، اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں بھی پاک روح کا مسا اور معموری دے، تاکہ خداوند پاک روح کی معموری میں ہم سبھی یسوع کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ خداوند، آج جب ہم تیری حمد و ثنا کے گیت گائیں تو خداوند پاک روح کی مدد کے وسیلے سے ان حمد و ثنا میں کوائر ہماری اچھی رہنما بن سکے۔ خداوند، دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر، تمام دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور خداوند، دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ آج کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت پائیں، ایمان میں مضبوط ہوں اور معجزات کے ساتھ واپس لوٹیں۔ خداوند، تیرا مسا ہم میں سے ہر ایک پر ٹھہر جائے، تاکہ خداوند ہمارا ایمان مضبوط ہو اور آج کی عبادت یسوع کے نام کو جلال دینے والی ہو۔ خداوند، آج جہاں بھی دنیا میں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں، ان عبادات سے صرف اور صرف یسوع کا نام سربلند ہو۔ خداوند، تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اور ہماری حفاظت کر، جتنے لوگ ابھی تک نہیں پہنچ سکے انہیں پاک روح کی تحریک دے، اور خداوند یہاں پر خیریت سے پہنچا، مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 99 गाएंगे। ज़बूर नंबर 99, यहोवा राज आप करता है कुल लोग गुनाहगार। ज़बूर नंबर 99, ज़बूर नंबर 99। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारी रहनुमाई मिसेस सुरैया सरफराज करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें, खुदावंद के दिन में इबादत के लिए आ सकें। दुआ करेंगे कि खुदावंद आज की इस इबादत को हमारे लिए बरकत का बायस बनाए, इस जगह को FC कॉलेज को खुदावंद बरकत दे।
FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारे मुल्क को अमन और सलामती बख्शे, तरक्की बख्शे। जिन मसाइल का सामना हमारे मुल्क को है उन मसाइल को खुदा ख़त्म करे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। हम पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, जंगों के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और मिसेस सुरैया सरफराज दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी हम तेरी तारीफ करती हूँ क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अवधि और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदावन, कि सब लोग तेरे लोग खुदावन अपने पाँव पर चलकर अपने दिल की खुशी से तेरी प्रस्तश करने के लिए आए, क्योंकि खुदावन तू खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस जगह के लिए खुदावन, इस ऑडिटोरियम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम लोग यहाँ पे आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तश कर सकें। खुदावन FC कॉलेज अदारे के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन ये अदारा तेरे नाम के लिए खुदावन रोज़ रोज़ बढ़ता और तरक्की करता जाए। इस अदारे के वसीला से खुदावन बहुत से लोग बरकत पाए। खुदावन का खुदा, मैं तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन तो अपने बंदा को कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन जितने बहन भाई आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावन, और जितने अभी तक नहीं आए खुदावन फजल दे के वो भी जल्द आए ताकि हम मिलकर तेरी प्रस्तश और तेरी इबादत और शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावन का खुदा, ऐ बाप, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर दुआ करती हूँ। ये मुल्क तेरा है, ये लोग तेरे हैं खुदा। इस मुल्क से खुदावन, इस मुल्क की तू हिफाजत कर और खुदावन महंगाई के इस खुदावन सैलाब को ख़त्म कर खुदा, और खुदावन ताकि लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावन इस मुल्क में तेरी रोशनी आए, तेरा कलाम फैले और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन का खुदा, मैं दुआ करती हूँ उन ममालिक के लिए जहाँ जहाँ अज़ार सानियाँ हैं। ऐ खुदावन, तो अपने लोगों की हिफाजत कर और अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे ताकि तेरे लोग खुदावन इन वक्ती तकलीफ से खुदावन खौफज़दा ना हो, बल्कि खुदावन वो ईमान पर खुदावन बढ़ते और तरक्की करते जाएं और खुदावन आखिर में वो तेरे हुजूर से इनाम हासिल करें, ज़िंदगी का ताज हासिल करें। खुदावन मुल्क पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और खुदावन हमारे इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, खुदावन का खुदा इन मुश्किलात को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावन, आज तेरा पाक सबत का दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पढ़ा जाए 100 गुना फल है। खुदा, मुकद्दसीन लोगों के लिए तेरे हुजूर दुआ करती हूँ जो तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरे नाम की खातिर सफ़र करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐ खुदा, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें कसरत से बरकत दे ताकि वो रोज़ बरोज़ तेरे लिए ज़िंदगियों को जीत सकें। खुदा पाक खुदा, वो रोज़ रोज़ बीज बोए खुदावन, ताकि जब तू आए तो फसल तैयार है और खुदावन और इसमें शामिल हो जाए। ऐ खुदावंद, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ऐ खुदावंद, और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब को बड़ी बरकत दे, इन सब के दिलों की मुरादों को पूरा कर। मैं दुआ करती हूँ अपनी कौम के नौजवानों के लिए, हमारी कौम के नौजवानों को खुदावंद इल्म हासिल करने की तौफीक दे। वो बहुत पढ़े हैं खुदावंद, और पूरी दुनिया में खुशबू की मानत फैल जाए और तेरे नाम को जला दे। हमारे बच्चे बहुत खुदावंद पढ़े और आगे आए। हमारी कौम की तमाम बेवाओं, यतीमों, गरीबों पर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें बरकत दे। यहाँ पे हर एक शख्स पर तेरा रहम बढ़ जाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए अब ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91 पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 91।
बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मुतफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं, तो यीशु के नाम से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, उन सबको खुदा की हजूरी में ले आएँ और शिफा मांगें। आए हम दुआ करें। काज़े मुतलक खुदा, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तेरे बेटे यीशु का नाम सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु के नाम में कुदरत है। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फतह है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हो। ये तेरा फजल है खुदावंद कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। दुनिया के माबूद तो महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो जवाब देते हैं, लेकिन तू हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम अपने लिए मौजज़ात मांगते हैं। खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम सब शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावंद वो बीमारियां, वो तकलीफें जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते, या जिन बीमारियों के सबब को डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, तू उन्हें भी जान सकता है, क्योंकि तेरी आंखें आग के शोलों की मानद हैं और हमारे जिस्म को देखती हैं, हमारे जिस्म के हर एक आज़ा से वाकिफ है। खुदावंद इसीलिए दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमें शिफा मिल जाए। हर एक तकलीफ को हम सभी मिलकर यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। खुदावंद हमारे पास अपनी कोई कुव्वत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, यीशु का नाम है और यीशु के नाम में ही सारा इख्तियार और कुव्वत और कुदरत है। इसलिए यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक तकलीफ हमारे जिस्म से दूर हो जाए। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और शिफा दे। हमारे घरानों में से जो भी शख्स बीमार है, खुदावंद तुम्हें जानता है, यीशु के नाम से उन्हें शिफा मिल जाए। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए भी यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आख्तर के लिए, मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस शमीन हीरा के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, मिसेस रोजी बशीर के लिए, दिलशाद के लिए, बेटी मारिया आमिर के लिए, भाई सैमसन सुहेल के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई अगस्टीन के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए और भाई परवेज यूसुफ के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सभी लोग शिफा पाएं। यीशु के नाम से सारे लोग अपनी जिंदगी में मौजज़ात को देखें। तेरी कुदरत का तजुर्बा खुदावंद सबकी जिंदगी में हो। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिले। तेरी मेरास उनकी जिंदगी में आए। तेरा फजल खुदावंद उन्हें छू, ताकि तेरे छूने से उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा हो। तेरी कुदरत खुदावंद ज़ाहिर हो। तू छू खुदावंद अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत उन्हें बरकत दे। खुदावंद तू रहम कर। खुदावंद हमें मुख्तलिफ वबाओं से बचा, कोरोना से और मुख्तलिफ जो मौसमी वबाएं हैं उनसे खुदावंद हमें महफूज रख और बरकत दे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। हमारे हर हफ्ते यूथ की बाइबल स्टडी हफ्ते की शाम को 6:30 बजे होती हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आपके बेटे और बेटियां यंग एज में हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हें ज़रूर इस यूथ की इबादत में भेजें। ये हफ्ते की शाम को हम 6:30 बजे करते हैं और इसमें मुख्तलिफ बिब्लिकल टॉपिक्स पर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, सेकुलर मौज़ूआत पर भी हम जवान बेटे और बेटियों को सिखाते हैं। इसलिए ज़रूर इस इबादत में शामिल बच्चों को करें, क्योंकि ये चैलेंज बतौर मसीही माँ बाप हमें लेने की ज़रूरत है कि जब हम अपने बच्चों की
सेकुलर एजुकेशन के लिए भी फिक्रमंद होते हैं, तो अपने बच्चों की जो बाइबल की तालीम है, ईमान में उन्हें मजबूत करना है, उसमें भी ज़रूर फिक्रमंद हों और अपने बच्चों को यूथ की बाइबल स्टडी में ज़रूर भेजें। इसके साथ ही हमारा शायर बानी का जो कोर्स है, कन्फर्मेशन कोर्स जो है, वो जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। वो बच्चे जो 14 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, 13 से 14 साल के दरमियान हैं या 14 साल से ऊपर हैं और अभी तक वो शायर बानी नहीं ले रहे, उन्हें ज़रूर तैयार करें। जुलाई के पहले हफ्ते में हम शायर बानी का कोर्स करेंगे और ये 5:30 बजे क्लास होगी। ये 5:30 से 6:30 1 घंटे की हम क्लास किया करेंगे। ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक होगी, यानी ये 5 दिन की क्लास होगी, जिसमें 5 टॉपिक्स पर हम जो कंफर्मेशन में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सिखाएंगे। और ये बुनियादी तालीम है जिसमें हम अपने जवान बेटे और बेटियों को जो अभी तक शायर बानी में शामिल नहीं हुए, उन्हें शायर बानी में शामिल करने के मकसद के बारे में बताते हैं, खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए इसमें जो बड़े भी जो अभी तक शायर बानी नहीं लेते, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो अभी तक शायर बानी नहीं लेते क्योंकि वो कन्फर्मेशन में शामिल नहीं हुए, उनके लिए भी मौका है। और जो लोग लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, उनके लिए भी हमने ये इस दफ़ा, बल्कि हम गुज़श्ता 2 सालों से ऐसा कर रहे हैं कि जो पढ़ लिख नहीं सकते वो भी इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ हम ऑरल करते हैं, टेस्ट का करते हैं सिस्टम, और उनको सिखाते हैं और उसके बाद ज़ुबानी उनसे बातचीत भी करते हैं, ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो सके कि हम उन्हें खुदा के कलाम को सिखा पाए हैं और वो खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हुए। इसलिए जो लोग शायर बानी में शामिल नहीं होते क्योंकि वो कन्फर्मेशन में शरीक नहीं हुए, इस्तेहकाम की इबादत में शामिल नहीं हुए, चाहे वो किसी भी उम्र में हैं, वो आ सकते हैं ताकि वो भी इस कोर्स में शामिल हों। और ये कोर्स जो है ये जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगा। ये 3 तारीख से, 3 जुलाई से, सोमवार से लेकर ये 6 जुलाई तक चलेगा। इसलिए ज़रूर इस कोर्स में शामिल हों। और उसके अलावा हमारा चर्च की तरफ से फैमिली कैंप जो है वो 14 से 16 जुलाई को कागान नारायण जा रहा है। उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए जो जाना चाहते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर हम उनको लेकर जाएंगे। और उसके लिए आप कामरान को, एल्डर कामरान साहब को नाम लिखवा सकते हैं। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो सब्सिडाइज्ड है। 7,000 जो है वो आप लोगों ने देना है, जिसमें 3 दिन हम वहाँ पर रहेंगे। उसी में सर रहाइश भी है, खाना भी है, और आने जाने का जो ट्रेवल है वो एक्सपेंस भी उसी में है। लेकिन उसमें हम 3 दिन वहाँ पर गुजारेंगे और खुदा के कलाम को भी सीखेंगे और उसके साथ साथ हमारे लिए सैर का मौका भी होगा। ये 2 साल हम नहीं कर सके कोरोना के सबब से, फिर दोबारा से इस दफ़ा हमने इसको शुरू किया। लेकिन जल्द से जल्द जाना चाहते हैं अपने नाम जो हैं एल्डर कामरान साहब को लिखवाएं। क्वायर का गीत है आज जी, क्वायर से हम एक गीत सुनेंगे। और हमेशा की तरफ मैं दरखास्त करूँगा जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ शामिल हो, ताकि आप भी उस में शामिल होकर सीख सकें और वो गीत जो है वो कहीं से भी पढ़ सकें। आज के गीत का इंतखाब भी हमने सियाकुल कनेक्शन गीत की किताब से किया। एक्चुअली ये ज़बूर है, ज़बूर 106। आप सब हमारे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर 106, Psalm 106। आप सब हमारे साथ मिलकर खुदा की हम घोषणा कर सकते हैं।
को सुनने से पहले दुआई हरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर 362, 362 ए बाप तू बरकत दे। और इसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। गीत नंबर 362। पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब, उसकी छठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब, छठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians chapter 6 verses 6 to 10। और इसे की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस सारा हारून करेंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करें। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सब के साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। आमीन।
तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए भी अपने सर को झुकाएं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करें। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे हो सकें। खुदावंद, हमने तेरी हमद के गीत गाए हैं और तेरे नाम को जलाल दिया है। खुदावंद, हम अपने आप को तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करते हैं। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तू हमारी मदद कर ताकि आज का कलाम हम में से हर एक की बरकत का बायस हो। हमारे ख्याल और ध्यान तेरे तरफ लग जाएं। सुस्ती, काहली, दुनवी सोचें, फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ हो और खुदा तू मेरी भी रहनुमाई कर। अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह, तू मदद कर ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे। यीशु के नाम से आमीन। हम गुज़श्ता 2 अतवार से मुख्तलिफ त्योहारों के सबब से गलीतियों के खत का जिसका हम मुताला कर रहे थे उससे अलग रहे, लेकिन दोबारा से अब हम गलीतियों के खत की तरफ वापस आए हैं जो अपने इख्तिताम की तरफ है, और इससे अगला जो अतवार होगा उसमें हम इसको ख़त्म कर लेंगे। और गलीतियों के खत में हमने 5 अबवाब जो हैं उसमें हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल के वसीले से शरीयत और ईमान के दरमियान मुआजना देखा है, और ईमानदार किस तरह से ईमान के सबब से निजात पाएगा। वो पौलुस ने इस खत में उन मसीहों को जो कुछ ऐसे उस्तादों के ज़ेर साया थे जिन्होंने ये कहा कि जो भी मसीही होना चाहता है वो पहले शरीयत पर अमल करे और फिर वो मसीही होगा, उनसे बचाने के लिए, ऐसी गलत तालीम से बचाने के लिए पौलुस ने इस खत में शरीयत के बजाय जो यीशु मसीह के फजल के, खुदा के फजल के वसीले से जो यीशु मसीह में हम हुआ, उसके वसीले से जो कलीसिया में निजात का जो खुशखबरी दी गई है उसके बारे में पैगाम दिया। और है शरीयत की क्या पैगाम है वो दिया गया। आगे हम 5वें बाब की आखिरी हिस्सा और एक और इशू कि अगर मसीही लोग शरीयत से आजाद हैं तो फिर क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, जो चाहे वो करें, खुदा उन्हें कुछ नहीं कहेगा, खुदा नाराज नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने शरीयत की कैद से रहाई दी है। तो इसका मतलब ये है कि क्या मसीही आजाद हैं कि जो चाहे वो करते रहें? इसको रोमियो के खत के 6वें बाब में भी पौलुस ने इसी इशू को एड्रेस किया है, और यहां पर भी 6वें बाब में पौलुस रसूल ने अमली तौर पर एक मसीही जो कि शरीयत की कैद से तो रहाई पाता है लेकिन पाक रूह के ताबे हो जाता है, उसकी जिंदगी में जो अमली तब्दीलियां आती हैं उनको बयान किया है। हमने कुछ अतवार पहले 6वें बाब की पहली 5 आयत देखी थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत को पूरा करने के बारे में तालीम दी गई कि किस तरह से ईमानदार यीशु की शरीयत को पूरा करता है। और फिर आगे 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक बड़ा ही एक अहम इशू है, बहुत एक अहम मामला है जिसे बतौर ईमानदार हमें समझने की जरूरत है, उसको पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं। और यहाँ पर 7वीं आयत में 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो उसको मैं आपके सामने रखूंगा। लिखा है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। कि जो भी हम काम करते हैं उसका एक नतीजा है। आवर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे जो काम हैं उनके नताइज हैं। हम ये ना सोचें कि क्योंकि हम आजाद हैं, यीशु ने हमें आजाद कर दिया है, यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी है और हमें जो आजादी मिली है हम उससे जो चाहे करें। और इस बात ने कलीसिया को बहुत हद तक खुदा की मर्जी को पूरा करने से दूर कर दिया है। ये एक ऐसी खामी है जो दिन ब दिन कलीसिया में पेनिट्रेट करती जा रही है।
کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں. لیکن پالوس نے جب گلتیوں کے خط میں بار بار مختلف دلیلوں کے ذریعے سے مسیحیوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ آزاد ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز سے بھی وہ واقف ہے کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں. جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج یہ ہو سکتے ہیں کہ مسیحی لوگ یہ سوچیں کہ سانوں کا نہیں پرواہ، جو چاہو کرو، سازی تے آزاد ہے. اور اکثر ہم ایسا کرتے بھی ہیں، وہ ساڈے تو کوئی پابندی نہیں چاہیے، ہم اکثر ایسا کہتے بھی ہیں. اور ان باتوں نے ہمیں خدا کے کلام سے اور خدا کی باتوں کو، خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے دور کیا ہے. لیکن پالوس نے آخری باب میں اسی خامی کو دور کرنے کے لیے اور مسیحوں کو ایک اور نقصان کی طرف جانے سے بچانے کے لیے کہا. ایک نقصان پالوس رسول گلتیوں کے خط میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسیحی لوگ واپس شریعت کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ مسیحی لوگ کہیں فضل کے تحت آ کر، کہیں خدا کی محبت میں سرشار ہو کر کہ خدا نے بہت ہمیں محبت کی ہے، ہمیں کچھ بھی خدا نہیں کہے گا کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، تو ہم جو چاہے کریں، اس طرف بھی پالوس نے دھیان دیا اور کہا کہ جو کچھ بوتا ہے انسان وہ وہی کاٹے گا. کہ ہمارا ہر کام جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہے. Our actions have consequences. کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. آج ہم جو کچھ ہیں وہ کل کا نتیجہ ہے جو ہم نے کل کیا ہے، اور جو ہم آج کریں گے اس کا نتیجہ ہم آئندہ دیکھیں گے. اس لیے ہمیں اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی 7ویں آیت میں، اس پہلے حصے میں پالوس نے کہا فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو فریب دے سکتے ہیں، خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا سکتے ہیں، خدا سے ہم چھپا سکتے ہیں، خدا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. ایسے فریب میں ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کے کلام سے بھی اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھگتتے ہیں. خدا کے کلام میں بھی داؤد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ داؤد نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کو اس نے سمجھا کہ کسی کو نہیں پتا، نہ لوگوں کو پتا چلا ہے نہ ہی خدا کو پتا چلا ہے. اور لوگوں میں سے جن لوگوں کو پتا تھا وہ انہوں نے ڈرتے بات نہیں کی ہوگی کہ بادشاہ ہے. لیکن سیموئیل نے جب آ کر داؤد کے ساتھ بات چیت کی، مقدس سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 12واں باب، اس میں سیموئیل نے آ کر داؤد سے بات کی اور ایک مثال کے ذریعے سے اس سے سوال پوچھا تو اس کو بڑا غصہ آیا. سیموئیل نے آ کر داؤد سے پوچھا کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اسی کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کی تھی. اور اس امیر کے ہاں ایک مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں تھا آیا تھا پکائی. ذکر تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا. اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے. سیموئیل نے سے جواب دیا، سو اس شخص کو سیموئیل نے جواب دیا، تب ناتن نے داؤد سے، معاف کیجیے گا سیموئیل کا، ناتن نے داؤد سے کہا وہ شخص تو ہی ہے. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کی اور اس کے حضور بدی کی؟ اور اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ جو اس نے گناہ کیا اس نے سوچا کسی کو نہیں پتا. جب ناتن نبی آیا اس نے بتایا کہ تو ہی وہ شخص ہے. اور اس کے بعد نتائج اس کے 13ویں باب سے شروع ہوتے ہیں اور 20ویں باب تک جاتے ہیں. کس طرح سے اس نے اس کو بھگتا، اس گناہ کو معافی مانگ لی، خدا نے معاف کر دیا، لیکن نتائج گناہ کے اس کی زندگی میں رہے، اس کے خاندان کی زندگی میں رہے. داؤد کا بیٹا مر گیا، پھر اس کے بعد امنون اور تمر کا واقعہ اس کے خاندان میں ہوا. ابھی سلوم پھر بدلہ لیتا ہے، جھگڑا بڑھ گیا.
अबीसलोम ने बगावत कर दी, फिर उसके बाद और बगावतें भी हो गई और दाऊद को भागना पड़ा जान बचाने के लिए। खानदान में से बगावत जब उठी तो और लोगों ने भी बगावत के लिए सर उठा लिया। गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज जो हैं दाऊद को भुगतने पड़े। गुनाह का असर जो है, जब सोचते हैं ना कि आज़ाद है, जो मर्जी करे जाएं, जो मर्जी करते जाएं, ऐसा नहीं है। अगर हम जो बोते हैं वही काटेंगे। ये खुदा के कलाम का फैसला है। खुदा के कलाम में ये लिखा है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसके 5वें बाब की 10वीं आयत में हम खुदा की अदालत के बारे में बयान पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 5वां बाब जो है वो हर एक को खुदा की अदालत में हाजिर होने के लिए बताता है कि हर एक को हाजिर होना पड़ेगा। लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए। मसीह की तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हैं, खा भले हों खा बुरे। खुदा के तख्त के सामने हर शख्स को जवाब देना होगा और हर एक को खुदा के सामने जाना होगा, उसकी अदालत में हाजिर होना होगा। इसलिए इस बात को जरूर ज़हन में रखें कि खुदा का कलाम जब हमें ये सिखाता है कि निजात मिल गई है यीशु के वसीले से, तो इसके बाद ये ना समझे कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, अब हम आज़ाद हैं, हम जो बोएंगे वो काटेंगे। और आगे 8वीं आयत में फिर क्या लिखा है कि जो हमारे एक्शंस हैं उनके नताइज क्या होते हैं, जिस्म के काम के क्या नताइज हैं। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और 5वें बाब के आखिरी हिस्से में जिस्म के काम भी बयान किए गए। जिस्म के काम 5वें बाब के 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक जिस्म के काम है और फिर 6ठे बाब में उनके नताइज का जिक्र है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और जिस्म के काम क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां और बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इतने कोई बड़े तो छोटे गुनाह का जिक्र नहीं है कि बड़ा गुनाह जो है वो कर लें तो नुकसान हो जाएगा, छोटा करेंगे तो कोई बात नहीं। सिर्फ लड़ाई की थी है ना, और कुछ नहीं की, वो भी गुनाह है। जो भी हम खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं, नाफरमानी है, वो गुनाह है। और गुनाह का जो मफहूम है मसीही ईमान के मुताबिक यही है। और ये जिस्म के कामों का जिक्र हरामकारी से शुरू हुआ है, नापाकी से, शहवत परस्ती से, ग्रेविटी देखे सीन की, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आता किधर है? लड़ाई की तरफ, गुस्से की तरफ, तफरके की तरफ, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। यहां पर ग्रेविटी कम होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे जिस्म के काम हैं, ये सारे ही गुनाह हैं। हर एक बात यहां पर लिखी है, यहां पर ग्रेविटी की बात नहीं, यहां पर शिद्दत की बात नहीं कि गुनाह कितना बड़ा है उसके मुताबिक सजा मिलेगी। जो गुनाह है, जो नाफरमानी है, वो खुदा की नजर में गुनाह है। जो कुछ भी हम खुदा की मर्जी के खिलाफ करते हैं वो गुनाह है, और उसका जो बीज बोएगा वो हलाकत की फसल काटेगा। और उसके दूसरे हिस्से में जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। रूह कुदस के काम जो है, रूह का फल जो है वो भी 5वें बाब में लिखा है। जो मैंने खूबियां जब हम पढ़ रहे थे रूह के फल का, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि उसकी 9 खूबियों का जिक्र है कि मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म। ये जी रूह का काम है, रूह का फल है, और ये रूह के फल की खूबियां हैं जो हर एक शख्स की जिंदगी में हो। और जो इसके जरिए से काम करता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। गुनाह का जो बीज बोया जाता है उसका फल भी हलाकत है, और जो रूह का फल है, जो रूह की रहनुमाई में रूह के ताबे होकर काम किए जाते हैं, उसका फल हमेशा की जिंदगी है। यानी हर एक को फल जरूर देखना पड़ेगा।
जो भी इंसान बोएगा उसको जरूर उसका फल देखना पड़ेगा, लेकिन आगे फल जो है वो फर्क है, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज फर्क है। जो जिस्म के ताबे हैं, जिस्म की ख्वाहिशों के, जिस्म के इरादों, जिस्म की सोचों के ताबे हैं, वो हलाकत की फसल काटेगा। और जो रूह के ताबे है, हमने जब हम 5वें बाब में रूह का फल का जिक्र पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 25वीं आयत में पढ़ा कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और 24 में लिखा था, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ये 24 में 25वीं आयत रूह के ताबे जो जिंदगी है उसकी जिक्र करती है। स्पिरिट फील्ड लाइफ, हमने एक इसमें टॉपिक पढ़ा था, मजमून पढ़ा था कि जो रूह के ताबे जिंदगी है उसका मतलब ये है कि रूह का फल हमारी जिंदगी से जाहिर हो, और रूह के फल के वसीले से जो हम काम करेंगे उसका नतीजा हमेशा की जिंदगी है। उसका नतीजा खुदावंद के फजल से जब हम खुदा की अदालत में आते हैं उससे हम लेते हैं। और इसमें 9वीं आयत में भी एक और नया अंदाज है पौलुस का। 9वीं आयत में लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। फिर उसी के साथ इसको जोड़ देते हैं, फसल काटने के नतायज जो हैं वो कब मिलेंगे। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके नतायज कब आएंगे। हम चाहते हैं फौरन आ जाएं। हमने नेकी की है तो कुछ खुदा को तो कुछ नहीं मिल रहा। यदि हम चाहते हैं कि जब हम नेकी करें तो उसी वक्त खुदा भी हमें रिटर्न कर दे, लेकिन यहां पर पौलुस ने इंतजार करने का, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, करते जाएं, कंटिन्यू गुड वर्क्स के जो आपके अच्छे काम हैं उनको जारी रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। देयर इज अ टाइम ऑफ रिवॉर्ड, खुदा की तरफ से इनाम का वक्त है। हम चाहते हैं कि जब हमने काम किया तो हमें फौरन मिले, अगर नहीं मिला तो छोटो को ना की करना है नेकियां करके, खुदा तो सारी फिर भी नहीं सुनता। अक्सर हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस ने कहा कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, बेदिल ना हो तो वक्त पर, ऐन वक्त पर काटेंगे। यानी खुदा की तरफ से वक्त है जब फसल आएगी, जब फल मिलेगा, उसके लिए हमें बेदिल नहीं होना चाहिए। इस हवाले में 2 कामों की तरफ पौलुस ने इशारा किया है, नेक काम करने की तरफ और शेयरिंग की तरफ। 6ठी आयत जो है वो शेयरिंग के लिए है, और जो 10वीं आयत जो है वो नेकी करने की तरफ है। और इसमें 2 मुख्तलिफ तबकात को पौलुस ने मेंशन किया, हवाला दिया है। 6ठी आयत में है टीचर्स के लिए, प्रीचर्स के लिए जो मजहबी तालीम देते हैं, और 10वीं आयत में फेलो बिलीवर्स के लिए, यानी जो हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, दोनों के साथ नेकी करने और शराकत करने की तालीम, जिसमें 6ठी आयत में है कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। और इसी तरह से 10वीं आयत में जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। 6ठी आयत में खुदा के खादमों के साथ शराकत, और 10वीं आयत में जो फेलो बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं, उनके साथ नेकी की तालीम। आज से काफी साल पहले की बात है कि मैं उस वक्त पीसीबी के ऑफिस में काम करता था, तो एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरा गांव जो है वो लाहौर में जॉब करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में कोई पादरी नहीं है, तो आप किसी पादरी को वहाँ पर भेजें हमारे पास। तो सब मैं प्रेसिडेंट चर्च के हेड ऑफिस में था यहाँ आने से पहले, तो मैंने कहा कि आप लाहौर में क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे जॉब करता था, तो मैं अपने बच्चों को फिर पढ़ने के लिए यहाँ पे ले आया, क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो मैंने पढ़ने के लिए यहाँ पर ले आया अपने ख़ानदान को। ठीक है, तो मैंने कहा आपको पादरी साहब जो चाहिए वहाँ पर गांव में आप उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम कर देंगे, या उनके लिए जो उनकी फैमिली होगी उनका इंतज़ाम करेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं, वो नहीं हम कर सकते,
تو میں نے کہا اس کی تو فیملی جو ہے اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کا بچے جو ہوں گے ان کی ضرورتیں ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ کہ جی انہیں خدا ہی اپنے آپ دیتا ہے، وہ اپنی فکر آپ کریں یا خدا ہی فکر کرے۔ تو میں نے کہا آپ نے تو اپنے بچوں کی فکر خود کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو خدا کی فکر پر کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ اپنے بچوں کو شہر میں لے کر آئے ہیں کہ ان کو پڑھائیں، لیکن آپ جو پادری صاحب چاہتے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں جائے، ادھر رہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کے لیے ایسے کر دیتے ہیں کہ گجرا والا پاس ہے تو وہاں سے کوئی پادری صاحب آپ کے وہاں پر بھیج دیتے ہیں گاؤں میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی اتنے رہنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا گھر تو ہے نہیں وہاں پہ، تو وہ تھے جناب اتنے تو لبے نہ کر۔ تو میں نے کہا یہ سارا کچھ اسی نے کرنا ہے، تو آپ کو خدا کا خادم پھر کس لیے چاہیے اگر آپ اس کے لیے شریک نہیں ہو سکتے کسی چیز میں؟ تو خدا کے خادموں کی فکر کرنا جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پر کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 12واں باب جو ہے، معاف کیجیے گا 9واں باب جو ہے، وہ خدا کے خادموں کے بارے میں فکر کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، 8ویں اور 9ویں آیت۔ 9ویں آیت میں پڑھوں گا، چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، کیونکہ خدا کو بیلوں کی فکر ہے، یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے، ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا ہے، کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے۔ یہ ہل جب بیل کو ہل میں باندھا جاتا ہے نا تو اس وقت دائیں جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اس کی فکر کی جائے، جو بیل ہے اس کی بھی فکر کی جائے کہ اس کو کھانا ملے ساتھ، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ یہ پالوس کہتا ہے یہ ہمارے لیے، رسولوں کے لیے، تعلیم دینے والوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، کہ خدا کے خادموں کی فکر کرنا کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں 10ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ نہ صرف خدا کے خادموں کی، اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کورونا کے دن تھے تو کورونا شروع ہوا اور حالات بہت خراب تھے، جابز لوگوں کی ختم ہو گئیں، تو ہم نے بطور سیشن یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چرچ میں ہدیہ نہ لائیں، آپ لوگوں کی مدد کریں، یا اگر کسی کو کوئی شخص نہیں مل رہا مدد کے لیے تو ہمیں بتائیں، ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر دیں۔ اس سے ہم نے یہ احساس لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ صرف چرچ کو ہی ضرورت نہیں ہے، ایمانداروں کو بھی ضرورت ہے، لوگ ہمارے ارد گرد ضرورت مند ہیں۔ اور ہم بڑی دفعہ ہم خدا کے خادم کے لیے، بعض اوقات خدا کے خادم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سبھی کچھ ان کے پاس ہو، یا پھر چرچ کے لیے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، اہل ایمان کے ساتھ اور ہر ایک ضرورت مند کے ساتھ، جو چاہے وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہی یہی ہے، دشمنوں کے ساتھ محبت کی تعلیم ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ہے۔ تو اپنے ارد گرد ضرورت مند لوگ اور خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، یہ ایک اچھے فصل کی طرف کاٹنے کی طرف ہمیں لے کر چلتا ہے۔ اچھی فصل کاٹنے کے لیے یہ دو باتیں پالوس نے مینشن کی کہ جو تعلیم دینے والے ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ، اور جو ہمارے ارد گرد ضرورت مند ایماندار ہیں ان کے ساتھ نیکی، یہ ہمیں اچھی فصل دے گی، یہ اچھے نتائج دیں گے، یہ ہماری بلیسنگز میں کردار ادا کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو بویا وہ اسے کاٹنا پڑے گا، اور جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان جو ہے وہ گندم کا بیج بوئے اور چاول نکل آئے۔ وہ یہ فرق تو ہو سکتا ہے کہ ہم بینگن جو ہے وہ گول والے بیج لگائیں لیکن وہ دوسرے لمبے والے بیج ہو جائے، لیکن رہیں گے وہ بینگن۔ اسی طرح سے جو فصل ہے جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں اپنے کاموں پر ضرور غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہمیں خدا کی عدالت میں ملے گا۔ اور خاص طور پر
ایسے اچھے کاموں میں بے دل نہ ہونے کی ایک واضح مثال جو ہے وہ آج ایک گواہی جو ہے آج ہی ایک ہمیں دی گئی. ایک گواہی کسی بھائی نے بھیجی لکھ کر انہوں نے کہ میری بیٹی کو 8 سال بعد اس کی جاب پر بحال کیا گیا اور اس کے ساتھ لکھا تھا 8 سال کی دعا کے بعد. یعنی انہوں نے 8 سال تک دعا کرتے رہے, جواب نہیں ملا. 8 سال کے بعد آخر کار خدا نے جواب دیا. وہ کبھی پیپر آیا تھا میرے پاس جس میں یہ لکھا تھا کہ میری جو بیٹی ہے اس کو 8 سال کے بعد اس کی جاب پر بحال کیا گیا. سال لکھا تھا 8 سال کی دعا کے بعد. تو کتنا انتظار کرنا پڑا ہے. یہاں میں پالوس نے بھی ایسے ہی لکھا ہے, ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے کہ جب خدا کی طرف سے وقت ہے خدا ہمیں فصل دے گا, خدا ہمیں برکت دے گا, خدا ہمیں ریٹرن کرے گا. اس لیے ضرور اپنی زندگی میں اپنے کاموں پر بھی غور کرتے رہیں اور جو نیک ہم کام کرتے ہیں اس کے نتیجے کے لیے ضرور فکر مند ہوں. اور یہ یاد رکھیں, اس ایمان میں مضبوط رہیں کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں تو خدا اس کا نتیجہ عین وقت پر ہمیں ضرور دے گا. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خدا قدوس, ہمارے زندہ ازلی ربی خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور تو اپنے بیٹے خدا مند یسوع مسیح میں دعاؤں کو سنتا ہے. خدا اپنے بڑے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں موجود ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ خدا مند تو عدالت کرتا ہے, تیرے پاس عدالت کا اختیار ہے. خدا مند ہم اپنے کاموں کو نہ تو دنیا سے چھپا سکتے ہیں نہ تجھ سے چھپا سکتے ہیں. دنیا سے چھپا لیں لیکن تجھ سے نہیں چھپا سکتے. آخر کار گناہ ظاہر ہوتا ہے, اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں. خدا ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ خدا مند ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں اور ہلاکت کی فصل کاٹنے کے بجائے زندگی کی فصل کاٹیں. ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹنے کے لیے خدا مند ہمیں تیار کر. ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور خدا کے خادموں کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے تیار کر. خدا مند آج جب ہم تیری میز پر آنے والے ہیں تو ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم تیری میز پر جب آئیں تو تیری میز پر توبہ کے سوچ کے ساتھ اور ایک نئی زندگی لے کر یہاں سے جانے کے لیے آ سکیں. یسوع کے نام میں آمین. خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 458 گائیں گے. 458 سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہدیے بھی خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے. گیت نمبر 458 458 سارا جلال یسوع تیرے لیے. Sara
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जहाँ पर आप आज़ादी के साथ तेरी इबादत के लिए जमा हो सकते हैं। खुदावंद हम जितने लोग यहाँ पर जमा हैं तेरी बरकत मांगते हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। हर एक को छू और बरकत दे, ईमान में मजबूत कर। और खुदावंद ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं, खुदावंद ये बख्श दे कि हदिया जात हम सब के लिए बरकत का बायस हो। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत बख्श दे, ईमान में मजबूत कर, एक जिंदा कलीसिया बना, गवाही देने वाली कलीसिया बना। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम कौमी सतह पर यीशु की खुशखबरी की मुनादी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। खुदावंद को हम में से हर एक के साथ हो और हमारी हिफाजत और निगहबानी कर। तेरा फजल तेरा रहम हम में से हर एक के साथ हो। खुदावंद तू हमें महफूज रख। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बच्चे जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उन्हें भी तेरी हजूरी में याद करते। खुदावंद उस सभी को बड़े अच्छे ग्रेड्स में कामयाबी बख्श दे। और खुदावंद हम सब के साथ उन्हें हादसात से, बीमारियों, परेशानियों से इस हफ्ते में महफूज रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। से राम आज मेरी मदद कीजिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो भी नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर पाने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए
کہ ہمارے گناہ آلودہ بدن اس کے بدن سے پاک صاف کیے جائیں اور ہماری روحیں اس کے نہایت بیش قیمت خون سے دھوئی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ اسی طرح خداوند اس ہوسٹیا کے لیے اور شیرے کی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کی تقدیس کر، تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے پاک ٹھہرا، تاکہ خداوند جب ہم اس میز پر اس شیرے کو لیں اور پئیں اور اس ہوسٹیا کو کھائیں تو اس کو کھانے اور پینے کے وسیلے سے ایک نئی زندگی کے ساتھ یہاں سے لوٹ سکیں اور خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار حقیقی طور پر اپنی زندگی سے کر سکیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جیسے آپ کو فرمایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ میں بھی خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو خداوند کی میز پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔
जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आए, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूं। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। इस रोटी में से खाए तो अमर तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा कर दूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यीशु ने कहा कि जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जिन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुन्नजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदल और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदल में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के स्वाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अब्दी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम और तलबात होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर बाप, हम तेरी हमद करते हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हो, तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है,
तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर अपने खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अभी हम एक गवाही सुनेंगे। आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जब लोग कोई गवाही शेयर करते हैं मेरे साथ, तो हम ज़्यादातर वैसे चर्च में हमारे पास वक्त कम होता है, हम इसको शामिल नहीं करते बात के हिस्से में, लेकिन गवाहियाँ जो हैं वो हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हैं। और हमारे बुजुर्ग सादिक साहब ने खुदा से शिफा पाई और उन्होंने ये कहा कि जी मैं ज़रूर गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद की मेज़ पर तब आऊँगा जब मैं गवाही दूँगा। तो मैंने सोचा कि ना तो मैं उन्हें गवाही देने से मुझे रोकना चाहिए और ना ही खुदावंद की मेज़ पर आने से रोकना चाहिए। उनका ईमान है और वो चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में जो बड़ा काम खुदा ने किया उसको खुदा आप सबके साथ बांटें, तो मैं उन्हें ज़रूर मौका दूँ। इसलिए अभी वो अपनी गवाही को हमारे साथ बांटेंगे और मेरी दरख्वास्त है सादिक साहब से कि वो माइक ले लें वहाँ पर सामने, और अब जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है उसको ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।